عزیزوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں آپ کی خدمت میں سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا حصہ مسلمانوں کے بائیکاٹ کا ٹائٹل لے کر آیا ہوں۔ تو آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دن پرتدن مسلمانوں کا زور بڑھ رہا تھا، لوگ دھیرے دھیرے اسلام کی اور کھینچ رہے تھے۔ تو کیا قریش ہاتھ پاؤں مار کر بے فکر ہو کر بیٹھے رہے؟ نہیں، وہ برابر اس دھن میں رہے کہ کسی طرح مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دیں، مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کر دیں۔ اسی مقصد سے وہ ایک دن سر جوڑ کر بیٹھے اور وچار کرنے لگے کہ کیا علاج کیا جائے جس سے محمد کے انوائیوں کا بادل چھٹ جائے، اس پر جان نچھاور کرنے والے دھول کی طرح اڑ جائیں اور وہ بے بس ہو کر رہ جائے۔ بہت دیر ہو گئی، وہ سوچتے رہے، وچار کرتے رہے۔ انت میں اس نتیجے پر پہنچے کہ محمد کا بائیکاٹ کیا جائے، پورا بائیکاٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ساتھیوں سے کسی پرکار کا کوئی سمبند نہ رکھا جائے، نہ کوئی ان سے شادی وواہ کرے، نہ کچھ بیچے خریدے، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان دے اور نہ کسی طرح کا لین دین کرے۔ اس رائے پر سب نے اپنی سہمت پرکٹ کی اور ادھک اطمینان کے لیے ایک لکھت سمجھوتا بھی تیار ہوا، جس میں انہی برے ارادوں کا الیکھ تھا۔ یہ لکھت سمجھوتا کعبہ میں لٹکا دیا گیا تاکہ ہر ایک اس کا آدر کرے اور کسی کو اس کے ہاتھ لگانے یا اس کا وروଧ کرنے کی ہمت نہ ہو۔ اس کے بعد قریش کے کچھ سردار مطلب خاندان کے پاس گئے اور انہیں دھمکی دی، اب کیول دو صورتیں ہیں، یا تو محمد کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اسے قتل کر دیں، اس پرکار تم کو بھی آرام مل جائے گا اور ہم بھی چین سے رہ سکیں گے، پھر ساتھ ہی ہم تم کو بہت سا دھن بھی دیں گے جو محمد کے خون کا بدلہ ہوگا۔ اگر اس بات پر تیار ہو جاؤ تو پھر کیا کہنا، ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم تم سب کا پورے طور سے بائیکاٹ کر دیں گے، نہ تم سے کبھی کچھ بیچیں گے، نہ خریدیں گے اور نہ کوئی لین دین کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خوب سوچ لو، تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ اب بولو، تمہارا کیا وچار ہے؟ مطلب کے خاندان کے لوگ یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے رحم ہاتھوں میں دے دیا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیری اپنے دل کے ارمان پورے کریں۔ آپ ان کی آنکھوں کی روشنی اور دل کا سکون تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی جان سے بھی پری تھے۔ انہوں نے قریش کی دھمکیوں کی تنک بھی پرواہ نہ کی اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہم ہر بات کہہ سکتے ہیں پر محمد کو نہیں چھوڑ سکتے۔ مشرکوں نے کہا، تو ٹھیک ہے، آج سے ہم تمہارے دشمن ہیں اور تم ہمارے دشمن، اور اب ہم تمہارا گھیراؤ کریں گے۔ قریش نے ان کا گھیراؤ کر لیا اور بھوکے مارنے کی اپنی یوجنا میں لگ گئے۔ ہاشم کے خاندان والے مطلب کے کٹمب کے رشتہ دار ہوتے تھے، اس لیے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ کیول ابو لہب نے بے وفائی کی، اس نے اپنے خاندان کا وروଧ کیا اور قریش کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ اپنے خاندان سے بیزار تھا۔ ان کو مصیبتوں میں دیکھ کر اسے بے حد خوشی ہوتی تھی۔ بائیکاٹ کی صلاح بھی سب سے پہلے اسی نے دی تھی اور لوگوں کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ ان لوگوں سے لین دین نہ کریں۔ محرم کا مہینہ تھا، نبوت کا 7واں سال تھا۔ ابو طالب پورے کٹمب کے ساتھ ایک گھاٹی میں نظر بند ہو گئے۔ یہی گھاٹی شیب علی طالب کے نام سے مشہور ہے، شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ لوگ دن رات یہیں پڑے رہتے، نہ کسی سے کچھ سمبند، نہ کوئی لین دین، ایک طرح سے جیل تھی جس میں وہ ہر سمے بند رہتے۔ کیول پرتشٹھت مہینوں رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں باہر آتے، جبکہ عرب کی سبھی لڑائی جھگڑے رک جاتے، ہر طرح کے خطرے ختم ہو جاتے، ہر آدمی بالکل آزاد اور بے فکر ہوتا۔ انہی مہینوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر آتے اور اسلام کے پرچار میں لگ جاتے۔ حاجی لوگ انہی دنوں میں مکہ آتے، بیاپاری لوگ مکہ کے نکٹ ہی بازار لگاتے اور کاروبار
के सामान सजाते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते, उनको इस्लाम की ओर बुलाते, बड़े ही दर्द और प्रेम से कहते, प्यारे भाइयों, अल्लाह का दीन अपना लो, वह बहुत खुश होगा, तुम पर दया करेगा और तुम्हें अच्छा बदला देगा। लेकिन अगर तुम कुफ्र और शिर्क में चिमटे रहोगे और इस दीन को ठुकरा दिया तो वो नाराज़ होगा और बहुत सख्त सजा देगा। जो लोग हबशा में थे उनको पता चला कि उमर मुसलमान हो गए, अब हर तरह इस्लाम के कदम जम गए हैं और अब वह निस्सहाय और बेबस नहीं रहा। मुसलमान अब बेझिझक कुरैश को इस्लाम की दावत दे रहे थे, उनकी गुमराही पर होशियार कर रहे थे। मक्का का कोना कोना अब इस्लाम के प्रकाश से जगमगा उठा। न केवल मक्का बल्कि मक्का के बाहर भी इस्लाम का डंका बज रहा था। यह सुनकर वे खुशी से खिल उठे और वतन के लिए इतने बेचैन हुए कि हफ्सा को छोड़कर फिर मक्का की ओर चल पड़े। मक्का के निकट पहुंचे तो मालूम हुआ कि मुसलमान नज़रबंद हैं, कुरैश का उन पर पहरा है, बड़ी तंगी और मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी हालत में वे मक्का क्या जाते, फिर वापस हफ्सा लौट गए। घाटी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सच्चे साथी पड़े रहे। 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 7 साल 6 महीने भी नहीं, लगातार 3 साल तक पड़े रहे। कठिनाइयाँ उमड़ उमड़ कर आती रहीं और वे सब सहते रहे। जब पानी सिर से ऊंचा हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को भी हिजरत की इजाज़त दे दी। वे भी हबशा चले गए। वहाँ पहुंचकर उन्हें कुछ सुकून मिला और अब मक्का में केवल गिने चुने मुसलमान रह गए। जो मुसलमान रह गए उन पर एक मुद्दत तक दुश्मनों का पहरा रहा, जिसकी वजह से एक एक मिनट उनके लिए मुसीबत बन गया था। लेकिन धन थे वे लोग, उनके स्वाभिमान और साहस का क्या कहना। सारी मुसीबतें एक तरफ और मुत्तलिब के कुटुंब की हिम्मत और मजबूती एक तरफ। भूख और फाके के कष्ट सहते रहे, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनिक भी आँच न आने दी और दिल जान से आपकी खिदमत और हिफाजत में लगे रहे। चाचा अबू तालिब का प्रेस और स्नेह भी देखने योग्य था। चाचा अबू तालिब का प्रेम और स्नेह भी देखने योग्य था। वे आपके लिए बिल्कुल दीवाने थे, जैसे एक ममता की मारी माँ का हाल होता है। वे एक क्षण के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गाफिल ना होते, यहाँ तक कि सोते भी तो अपने पास ही सुलाते। कभी किसी मजबूरी से साथ छोड़ना भी पड़ता तो अपनी जगह अपने किसी बेटे को कर देते कि रात में जाग कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रक्षा करें। कितनी मुश्किल हालात थे ये। सारा माहौल दुश्मन, दोस्त, रिश्तेदार सबसे अनबन, पास रखने के लिए कुछ नहीं, कोई लोगों से कोई लेन देन नहीं, जैसे हर समय मौत मुंह खोले खड़ी हो। यह समय इतना कठिन था कि खुदा की पनाह, पत्ते खा खा कर लोगों ने दिन गुजारे। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मशहूर सहाबी हैं। वे भी उस वक्त मुसलमान थे और इस बला में घिरे हुए थे। वे कहते हैं कि एक बार रात को सूखा चमड़ा हाथ आ गया, मैंने उसी को पानी से धोया, फिर आग में भूना और पानी में मिलाकर खाया। ये थे नाजुक हालात। ऐसे में अल्लाह ने मदद की, मजबूरों को सहारा दिया। कुछ लोगों के दिल उनके लिए नरम हो गए। मुसलमानों की बेबसी देखकर उन्हें तरस आने लगा। वे छिप कर उनके पास आते, कुछ खाने पीने का सामान दे जाते। इन्हीं लोगों में एक हिजाम के बेटे हुकैम थे। खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनकी फूफी थी। ये अपनी फूफी को रोटी सालन दे जाते। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद खाती और दूसरों को भी खिलाती। इसी प्रकार उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हिशाम भी मुसलमानों के बड़े हमदर्द थे। वे ऊँट पर बहुत सा खाना कपड़ा लाद देते। रात हो जाती तो मुसलमानों के पास आते, ऊँट को घाटी के बाहर ही बिठा देते और सारा सामान अंदर पहुंचा देते। हिशाम बराबर ऐसे ही करते रहे। कुछ दिनों में कुरैश को इसका पता चला। अब वे भी उनको भी सताने लगे, किंतु वे अपनी हमदर्दियों से बाज ना आए। हिशाम ने एक काम और किया। वे अबू उमैया के बेटे जुहैर के पास गए।
यह आतिका का बेटा और अब्दुल मुत्तलिब का नवासा था। हिशाम ने उसे कहा, ज़ुहैर, तुम तो खूब मज़े उड़ाओ, अच्छे से अच्छे खाना खाओ, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनो, और तुम्हारे मामा इस तरह परेशानी और बेबसी के साथ दिन गुजारें। क्या तुम्हें यह बात पसंद है? खुदा की कसम, अगर ये लोग अबुल हकम यानी अबू जहल के मामू होते और तुम ऐसा करने को कहते तो वह हरगिज़ इसके लिए तैयार ना होता। ज़ुहैर, मैं अकेला ही क्या कर सकता हूँ? खुदा की कसम, अगर कोई साथ देने वाला होता तो मैं इस समझौते को तोड़ देता। हिशाम, कोई और मिल जाए तो? ज़ुहैर ने कहा, कौन? हिशाम ने कहा, मैं। ज़ुहैर, अच्छा, एक आदमी और तलाश करो, कोई और मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। दोनों जवान समझौता तोड़ने के लिए तैयार हो गए। वह समझौता जो सारे कुरैश का समझौता था। अब वे दोनों किसी तीसरे को ढूंढने लगे। अल्लाह ने मदद की। न केवल एक बल्कि तीन बहादुर उनके साथ हो गए। ये तीनों कुरैश के 22 सरदार थे। एक अदी के बेटे मुतइम थे, दूसरे हिशाम के बेटे अबुल बख्तरी और तीसरे असवद के बेटे जमा। सुबह हुई तो हिशाम, मुतइम, अबुल बखरी और जमा घर से निकले। काबा के निकट ही कुरैश बैठे हुए थे। ये चारों सरदार भी जाकर बैठ गए। फिर ज़ुहैर वहाँ पहुँचे। उन्होंने पहले काबा का तवाफ़ किया, फिर आकर बोले, मक्का वालों, हम तो मज़े से खाते पीते हैं और बनी हाशिम एक एक टुकड़े को तरस रहे हैं। ना किसी से लेन देन कर सकते हैं, ना खरीद बेच सकते हैं। क्या यह उचित है? क्या मानवता और सज्जनता इसी का नाम है? खुदा की कसम, मैं बैठ नहीं सकता जब तक इस समझौते की धज्जियां न उड़ जाएं। ये सुनकर अबू जहल तंग कर उठा और कड़क कर बोला, तूने गलत कहा। खुदा की कसम, ये हरगिज़ न होगा। उसी दम ज़ुहैर के सब साथी एक साथ बोल उठे, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये होगा, ज़रूर होगा, होकर ही रहेगा। अबू जहल समझ गया कि यह सोची समझी स्कीम है, इसमें बोलना बेकार है। वह कलेजा महसूस कर रह गया। मुतइम समझौता नामा फाड़ने के लिए आगे बढ़ा। देखा तो उसे पहले ही दीमक चाट गई थी। केवल एक शब्द बाकी बचा था जो समझौते के शुरू में था। वो शब्द था, ऐ अल्लाह, तेरे नाम से। समझौता तोड़ दिया गया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सच्चे साथी घाटी से बाहर आ गए और दिल से फिर इस्लाम के प्रचार में लग गए। यह नबूवत का 10वां साल था जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सच्चे साथियों को इस कैद से छुटकारा मिला। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम।